Hello everyone, welcome back to my YouTube channel IIT Maths by JS Sir. So friends, this is our 8th lecture of Theory of Equation. In the previous lecture, we talked about 3 topics there. The nature of roots of quadratic equation, relation between the roots and their coefficients, and condition of common roots. So these 3 things we have talked in our previous lecture. हमने वहाँ पे just कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हमने। मैं सोचा कि थोड़ा आपको मैं समय दे दूं कि आप उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा एक बार दो बार वीडियो को रिवाइंड करके अच्छी तरह से समझ लें कि कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स क्या है, वन कॉमन रूट की कंडीशन क्या है, बोथ कॉमन रूट्स की कंडीशन क्या है, रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड कोएफिशिएंट यू अंडरस्टैंड ए बी सी एंड द रूट्स अल्फ़ा बीटा, उनके बीच क्या रिलेशन है, and obviously the nature of roots. So guys, now today we will discuss some questions based on that concept which we did in the previous lecture. So ताकि हमारा वो concept बेहतर तरीके से clear हो जाए और फिर हम अपने अगले concept में हम जा सकें. So guys, चलिए start करते हैं. हमारा आज का पहला question है, if the roots of the equation, you can see this, it's a quadratic equation, x square, the middle term and the constant term. So this is a quadratic equation, are real and distinct. Its roots are real and distinct. See guys, I have given you the condition when the roots can be real and distinct. Yes, आपने सही समझा. D is greater than 0. For D is greater than 0, the roots are real and distinct. For D less than 0, roots are imaginary. You understand what is D? The discriminant. What is D guys? D is under root of, D is B square minus 4AC. So it is inside, in the formula, it is inside the root. So if it is less than 0, so obviously it cannot come outside the roots. Hence, D less than 0 के लिए roots will be imaginary. For greater than 0, roots will be what? Rational और irrational दोनों हो सकते हैं. So obvious ही बात है, real तो होंगे लेकिन equal नहीं होंगे. तो that's why that's called real and distinct. And for D is equal to 0, obviously roots are real and also equal to each other. So guys, और भी मैंने कुछ कंडीशन बताई थी. चौथी कंडीशन में अगर आपका D जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, वो रूट से बाहर आ सकता है, so obviously rational and distinct answer we will get with that. And if it is not a perfect square, so obviously ये imaginary हो सकता है, irrational हो सकता है, imaginary तो नहीं हो सकता, irrational and distinct real roots होंगे तुम्हारे ये. So फिलहाल यहाँ पे condition क्या है friends? Real and distinct. So if you can compare this one, see what is the quadratic equation we are given here? X square minus 8x plus a square minus 6a is equal to 0. So what is the coefficient here guys? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सपोज मैं कैपिटल लेटर में यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे स्मॉल लेटर ऑलरेडी वहाँ पे है, दैट्स वाई मैं कैपिटल लेटर यहाँ पे कंसिडर करता हूँ. सो कंपेयरिंग विद द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज ए इज इक्वल टू 1, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बी इज -8 एंड कोएफिशिएंट ऑफ सी इज द कांस्टेंट टर्म इज a square minus 6a. Now what is the condition here guys? Real and distinct, so obviously we will use this one. D is greater than 0. For D greater than 0, that means our B square minus 4AC is greater than 0. And for that, what is B square minus 8 ka square? It will be 64 minus 4AC. 4 ones are 4 into this one. So minus 4A square and minus minus plus 24a is greater than 0. सब में फ्रेंड्स आप देखेंगे तो 64, 4 एंड 24 सब में 4 यहाँ पे क्या है कॉमन, यू कैन डिवाइड थ्रू आउट बाई 4 हियर. आप एक नॉर्मल पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, सो इनइक्वालिटी के रिलेशन में कोई चेंज नहीं आएगा. सो हेंस 4 16 a स्क्वायर एंड प्लस 6a इज ग्रेटर दैन 0. बट रिमेंबर फ्रेंड्स, a square, the first term, it's a quadratic equations like, so minus में नहीं रहना चाहिए, so you are going to multiply both the side by what? Minus. So it will become a square, this will be negative minus 6a,
एंड दिस विल बी ऑल्सो नेगेटिव, एंड ये ग्रेटर का साइन क्या हो जाता है, लेस देन ज़ीरो हो जाता है। सो फ्रेंड्स ये इनइक्वालिटी है, साइन ज़ीरो, साइन लेस देन क्यों हो रहा है, साइन चेंज क्यों हो रहा है। सो गाइस अगर आपको इसमें थोड़ा भी डाउट है इनइक्वालिटी के बारे में, अगर आप इस लेक्चर में नए हो, सो फ्रेंड्स मैंने इनइक्वालिटीज़ एंड एब्सोल्यूट वैल्यू का जो मेरा पहला कॉन्सेप्ट है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। मैं दैट वाज माय फर्स्ट कॉन्सेप्ट, बेसिकली मैंने पूरा डिस्कस किया वहाँ पर। आप जाके उसको फर्स्ट लेक्चर से पूरा गो थ्रू कीजिए, आपको वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सो आपको ये सब डाउट्स नहीं रहेंगे वहाँ पर फ्रेंड्स। सो a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 16 लेस देन 0। नाउ यू कैन सी दिस, इट्स अ quadratic equation. It's a quadratic equation. So let's find the factor of this here. 16 का फैक्टर सब्ट्रैक्ट करने पे -6 आना चाहिए। सो फ्रेंड्स 8 2 ज़ा 16 होता है, सब्ट्रैक्ट करना है तो ऑब्वियसली एक के पास प्लस एक के पास माइनस होगा। सो ऑब्वियसली माइनस, बिकॉज माइनस इज द रिक्वायरमेंट हियर, -8 and +2. So a minus 8 and a plus 2 will be the factor here. So a minus 8 into a plus 2 is less than 0. Now friends आपको याद होगा मुझे क्या चाहिए, मुझे all the possible values of a चाहिए। That means a के क्या क्या possible values हो सकते हैं। So इसके लिए आपको याद हो वेवी कर्व मेथड, सीधराचार्य मेथड, ये ऑल ऑफ यू लाइन पे पटकने वाला कॉन्सेप्ट आपको याद है क्या? नहीं तो फिर से वही कहूँगा, इनइक्वालिटी इन एब्सोल्यूट वैल्यू, उस कॉन्सेप्ट का आपका चौथा जो लेक्चर है हमारा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक वहाँ पे दिया हुआ है, आप क्लिक करके वहाँ पे जाइए, उसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ये वेवी कर्व मेथड क्या होता है। तो वैसे हम इसमें क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये जो हमारे फैक्टर्स हैं हम यहाँ से इनको जीरो कंसीडर करके यहाँ से a की जो वेरिएबल है उसका पॉसिबल वैल्यू गेट कर लेते हैं। सो a माइनस 8 इज इक्वल टू 0, हेंस a इज इक्वल टू 8, a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू -2। सो दीज आर द टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a हियर। अब हम इनको क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नेक्स्ट स्टेप में हम रियल लाइन पे पटक देंगे लाइक दिस, -2 विल कम फर्स्ट देन 8। बिकॉज ऑफ दिस your line will be divided in 3 distinct regions. This is the one of the region, this is the another region, and this is your third region. So guys, अब now sign convention, इन सभी region का sign convention या फिर sign कैसे decide करते हैं। You always know that the right side is always positive infinity, left side is negative infinity. Right side is always taken as what? Positive. This is the index, this is the standard one. Basically इन वेवी कर्व मेथड आप जाइए वहाँ पर उसको अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट, यू कैन अंडरस्टैंड इट। सो प्लस नाउ व्हाट विल बी द साइन ऑफ दिस रेंज हियर। ये 8 जो है ये कौन से ब्रैकेट से आ रहा है, इस ब्रैकेट से, इसका पावर कितना है 1, ऑड, सो साइन विल चेंज। ऑड के लिए पावर अगर ऑड है तो साइन चेंज होगा, इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। सो ऑड साइन चेंज, प्लस विल बिकम माइनस, एंड अगेन -2 is coming from this bracket, its power is 1, so obviously odd sign will change here. Now which one has to be accepted, since here less than 0, negative, less than 0 is what, negative, so negative region will be accepted here. So which should be your answer, -2 to up to 8. that means आपका जो a का वैल्यू है, your a value belongs to -2 up to 8। ब्रैकेट कौन सा रहेगा, ओपन ब्रैकेट रहेगा, क्यों, बिकॉज यहाँ पे जस्ट लेस देन 0 है, इक्वलिटी का साइन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर हम यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट नहीं लेंगे, ओपन ब्रैकेट ही लेंगे। तो दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। गाइस आपको थोड़ा भी अगर देखिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको यहाँ पे रियल एंड डिस्टिंक्ट नेचर दिया हुआ था, तो आप सारे कंडीशंस के रिस्पेक्ट में आपको फॉर्मूले वहाँ पे याद है, डी ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। सभी कंडीशंस में आप डी को ही यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हो, एंड मोर ओवर चांस है कि आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ सकता है, जिसके लिए आपको वेवी कर्व मेथड की जरूरत पड़ सकती है। थोड़ा भी डाउट हो आप वहाँ पर जाइए, उसे रिवाइज कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। सो नेचर ऑफ रूट से हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, एंड आई थिंक वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ यू रिमेंबर द कंडीशंस फार्मूला यू कैन अंडरस्टैंड इट ईजिली। चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन में। फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल कोएफिशिएंट्स हुज वन रूट इज 3 - 2i। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गाइज रिमेंबर मैंने आपको 3 नोट लिखवाए थे। येस, आफ्टर कंप्लीटिंग द नेचर ऑफ रूट्स, फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रीवियस लेक्चर, वहाँ पे हमने कुछ सिखाया था आपको कि इफ़ वन ऑफ द रूट यू आर गिवन फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज इमेजिनरी, सो दूसरा रूट भी उसका क्या होगा,
कॉन्जुगेट पेयर में होगा, वो भी इमेजिनरी होगा, इसके कॉन्जुगेट पेयर में होगा। लेकिन इसके लिए आपके तीनों जो कोएफिशिएंट्स हैं वो रियल होनी चाहिए। तो यस, दे आर सेइंग इट दैट द कोएफिशिएंट ए बी सी, आई मीन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें ए बी सी ये रियल हैं और इसका एक रूट 3-2i है। तो आपको इसको फॉर्म करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। इट्स वेरी सिंपल। द फॉर्मूला आई हैड गिवन टू यू वाज व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सो गाइस, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स, इसमें से एक रूट आपको पता है अल्फा 3-2i। सो कैन यू गेट योर बीटा? बीटा विल बी द conjugate of this, which is what, 3 plus 2i. Now what is alpha plus beta? Alpha minus 2i plus 2i will get what, 6. And what is alpha into beta? 3 minus 2i, 3 plus 2i, a minus b, a plus b, a square minus b square, 9 minus 2i the whole square, 9 minus 4i square is minus 1. You know that, guys? If I is equal to root of minus 1, so I square will be what, minus minus plus हो जाएगा। 9 plus 4 is how much, 13. So hence the equation is what, x square minus alpha plus beta 6x and plus 13. So guys, क्वेश्चन क्या था? आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था। वन ऑफ द रूट यू आर गिवन टू दिस, रियल कोएफिशिएंट एक रूट गिवन है, इमेजिनरी एक रूट है, दूसरा रूट भी क्या होगा आपको। इसी तरीके से इररेशनल केस में भी था कि इफ़ अगर वन रूट p प्लस रूट ऑफ q है, सो दूसरा रूट p माइनस रूट ऑफ q हो जाएगा। यस, सो इन दोनों ही केसेस में हम डायरेक्टली इस प्रकार से बना सकते हैं। और हमने रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड रूट्स हमने वहाँ पे देखा हुआ है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस तरीके से ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। So one of the root is alpha, other root will be what, is conjugate, you can see that, and we'll find alpha plus beta, we'll find alpha into beta and so on. This is our third question, and let's see this. If the roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0, this is the quadratic equation, you know this, are alpha and beta, you are given alpha and beta, you know this, alpha and beta are the roots of this equation. हम बहुत पहले से इसे सुनते आ रहे हैं, इसे बार बार इसको यूज करते आ रहे हैं। Then find the equation of whose roots are, find the equation, आपको वो equations पता करने होंगे whose roots are given to you. This is the first question, second, third. First question में the roots of the required equation is what, 1 upon alpha and 1 upon beta. Second में minus alpha minus beta, and third में you can see this is quite similar. दोनों जो रूट्स हैं वो लगभग एक जैसे ही दिख रहे हैं, 1 upon alpha 1 upon beta, माइनस अल्फा माइनस बीटा एंड दिस। गाइस, ऐसी कंडीशन में आप सोच रहे होंगे कि सर इक्वेशन क्या होता है। यस, इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो आपने रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड द रूट्स आपने वहां से देखा कि आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना होगा, अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना होगा। दिस इज द वन वे, एक तरीका हुआ जो आप इनको ऐड करके अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, थोड़ा सा वो लॉन्गेस्ट वे हो सकता है, वो आप कर सकते हो, वो नॉर्मल तरीका हो गया। बट मैं आपको थोड़ा और भी सिंपल बता देता हूँ जो आपको बहुत इजीली समझा देगा। सो गाइस, व्हाट इज आवर इक्वेशन हियर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 0। सो यू नो दिस, यहाँ पे अल्फा एंड बीटा दीज आर इट्स रूट, सो ऑब्वियसली अल्फा b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0, दैट विल सेटिस्फाइड बिकॉज अल्फा और बीटा उसके रूट्स हैं, तो वो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन 1 upon alpha 1 upon beta, so friends just consider here, let 1 upon alpha is equal to, suppose t it is, 1 upon alpha is equal to t, so since a alpha square plus b alpha plus c, so 1 upon alpha is equal to t, आपको यहां से अल्फा मिल सकता है which is 1 upon t।
अल्फा इज इक्वल टू 1/t। सो आप यहाँ पे अल्फा के प्लेस पे 1/t पुट कर दो एंड यू विल गेट योर रिक्वायर्ड इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ 1/अल्फा। आपको आसानी से मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा फिर आपका ये a इंटू 1/t द होल स्क्वायर t स्क्वायर प्लस b इंटू 1/t, so it will be b/t and plus c is equal to 0, multiplying both the side by this t square। so आप समझ रहे हो, so t square से मल्टीप्लाई करेंगे ये गायब हो जाएगा, so it will be a plus one of the t will get cancelled, it will be bt and plus ct square is equal to 0। अब आप चाहो जो भी यहाँ पे ले लो, आप अपने 1/अल्फा को 1/बीटा को आप जो भी चाहे यहाँ पे ले सकते हो। एंड यू नो व्हाट इज टी हियर, टी आपका 1/अल्फा है और 1/बीटा है, इसको सॉल्व, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हियर एंड सिमिलरली यू कैन डू फॉर द अदर्स एज वेल। यहाँ पे फिर से वही बात है, आपका इक्वेशन क्या बनता है, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो आप यहाँ पे माइनस अल्फा जो कि आपका एक रूट है, आप उसको टी कंसीडर कर रहे हो, सो हेंस अल्फा विल बिकम माइनस टी, यू विल पुट दिस इनटू दिस वन, सो इट विल बी a इंटू माइनस टी द होल स्क्वायर प्लस b into minus t and plus c is equal to 0, and obviously at square minus bt and plus c, this will be the required equation for this root। माइनस अल्फा माइनस बीटा रूट होने के लिए ये इक्वेशन हो जाएगा, इसके लिए ये इक्वेशन बनता है। और रही बात तीसरे, इसके लिए तो बिल्कुल वही बात, फिर से आप इसको कुछ t या y कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हो। तो सपोज मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ, आप समझ रहे हो, आपके यहाँ पे ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, क्यों ऐसा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके रूट से अल्फा बीटा, तो मैं इसमें से कोई भी एक, अल्फा इसका रूट है तो इसमें सेटिस्फाई द इक्वेशन हियर, यस वी कैन राइट दिस। और ये आप देख रहे हो, तो इसमें से अल्फा वाला मैं ले लेता हूँ, लेट 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू वाई। अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू वाई वन सा वाई प्लस अल्फा वाई। नाउ अल्फा वाले टर्म को एक साइड कर लेते हैं हम लोग, तो ये वहां जाएगा 1 माइनस वाई, इट विल बी हियर इज इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा वाई एंड अल्फा आफ्टर टेकिंग कॉमन 1 प्लस वाई विल रिमेन देयर, सो 1 माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस वाई एंड इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा। सो आप समझ रहे अल्फा के प्लेस पे आप क्या लिखने वाले हैं, ये आपका इक्वेशन था, ये आपका इक्वेशन है। यहाँ पे आपने क्या पुट किया, a इंटू अल्फा स्क्वायर, दैट मीन्स 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई द होल स्क्वायर प्लस b इंटू 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ इफ यू सिंप्लीफाई दिस, यू अंडरस्टैंड दैट क्या हो जाएगा, a इंटू 1 माइनस वाई द होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 plus y the whole square plus b into 1 minus y divide by 1 plus y and plus c is equal to 0, multiplying both the side by 1 plus y the whole square, so यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, here you will get 1 minus y square y the whole square plus ये एक कैंसिल होगा, so b into 1 minus y into 1 plus y and plus c into 1 plus y the whole square is equal to 0. You will simplify this and you will get the required equation. You know this, how to simplify this, a minus b the whole square का formula, conjugate multiplication, आप चाहो तो पूरा कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। Yes friends, तो बहुत ही आसान सा तरीका रहा ये, क्या अगर इक्वेशन दिया हो, उसके रूट्स दिए अल्फा बीटा, और आपको इक्वेशन पता करना हो इसके लिए, और उसके दोनों रूट्स आपको दे दिए जाएं, तो आप इक्वेशन कैसे पता करोगे, दोनों रूट्स अगर आपको दे दिए जाए तो इस कंडीशन में हम इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। मान लीजिए कि ऐसा वो नहीं देता, अगर वो आपको केवल बता देता है कि नहीं आपके पास दो रूट्स हैं 1/अल्फा एंड 1/बीटा, आपको दो, तो आपके पास तरीका है, सम ऑफ द रूट्स निकालो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालो और फॉर्मूला अप्लाई कर दो। इफ ए बी एंड सी आर इन ए पी एंड वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन यू आर गिवन, वन ऑफ द रूट यू आर गिवन हियर, वन ऑफ द रूट, दैट मीन्स ये जो 2 है ये इसका रूट है, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। सो ऑब्वियसली इट विल बी 2 द स्क्वायर, इट विल बी 4a
प्लस 2b एंड प्लस c इज इक्वल टू 0. वन रूट वॉज गिवन टू यू. सपोज आप एक रूट उसको अल्फा मान सकते हो, वहां पे तो आपको गिवन है. एंड फाइंड द अदर रूट. एक चीज आपको और भी गिवन है यहाँ पे फ्रेंड, वो क्या है, ए बी एंड सी आर इन ए बी. तो आप इस कंडीशन को यूज करिए. व्हाट इज द कंडीशन सेज दैट 2b इज इक्वल टू a प्लस c. फॉर numbers are in AP, A, B and C. The double of the middle term is equal to sum of the first and third. So आप 2b के प्लेस पे लिख सकते हो प्लस a प्लस c is equal to 0. Okay. So now 4a plus 1a is 5a. 1c, it will be 2c. You can write this as -2c. गाइस अल्फा प्लस बीटा आपका यहाँ पे क्या होगा, c अपॉन ए होगा. हम यहाँ से c अपॉन ए फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दैट विल बी 5 अपॉन 2. सो वी हैव c अपॉन ए, बट सिंस द सम ऑफ द रूट्स इज माइनस b अपॉन ए एंड द प्रोडक्ट द रूट इज c अपॉन ए. आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए. दिस इज गिवन टू अस -5/2 एंड इसमें से एक रूट आपको गिवन है, दैट इज हाउ मच, 2 आपको गिवन है. इसमें से कोई भी एक रूट मान लीजिए 2 है, आपका अल्फा ही मान लीजिए 2 है. सो 2 इंटू बीटा इज इक्वल टू -5/2. सो 2 विल गो देयर. बीटा यू विल गेट हियर व्हाट, -5 डिवाइड बाई 4. तो आपको बीटा. सो बच्चों ये हमारा है 5वां क्वेश्चन. इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर tan 30. पहले हमें कभी भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसका मीनिंग समझना है, एंड देन वो चीज़ें सोचनी कि हम इसके बारे में क्या जानते हैं. tan 30, tan 45 हमें दोनों ही रूट्स दे दिए गए हैं. दैट मीन्स आपको समझ लेना चाहिए कि हमको ये क्वेश्चन कहाँ से है. यस, रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड द रूट्स. हमने वहाँ पे क्या सीखा था, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन ये दो चीज़ें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए. किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ऐसा है. तो हमें दोनों ही रूट्स यहाँ पे गिवन है. मान लेते हैं ये अल्फा है, ये बीटा है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 प्लस क्यू माइनस बी. पी क्यू ये इसमें कोएफिशिएंट्स हैं. तो आपको कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा जो हमारे गिवन डेटा को यूज़ करते हुए जाता हो, और इस कंडीशन तो अपने आप ही डिराइव हो सकती हैं. फिर ये तो आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा. आपको गिवन है यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा. यस, व्हाट इज अल्फ़ा, tan 30. tan 30 अल्फ़ा, बीटा tan 15. सो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, tan 30 प्लस tan 15. ये चीज़ जो कि आप नहीं जानते हो, लेकिन यस अल्फ़ा प्लस बीटा होता क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b अपॉन ए. मतलब x का कोएफिशिएंट का नेगेटिव डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1. यहाँ पे तो -b अपॉन 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है. सो आपको tan 30 प्लस tan 15 -p दिया हुआ है, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा द टू रूट्स tan 30 एंड tan 15. सो tan 13 इंटू tan 15 ये आपको क्या होता है, c अपॉन ए. What is c here, q upon a is 1, so just q. तो आपको यहाँ पे tan 30 प्लस tan 15, tan 13 इंटू tan 15. आप समझ रहे हैं यहाँ पे tan a प्लस tan b, tan a इंटू tan b. तो इस तरह की जानकारी हमें किसी फॉर्मूले में अगर आपको याद आती हो कि मिलती है, तो उस फॉर्मूले को हमें अप्लाई कर देना चाहिए. अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो दोनों जो वैल्यूज़ हैं 30 एंड 15 दोनों को मिला के 45 होता है. तो हम ये कंपाउंड एंगल फॉर्मूला हम tan का यूज़ कर सकते हैं. तो जैसे कि आप जानते हो tan 45 विल बी इक्वल टू tan 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री. दिस इज एक्चुअली tan A प्लस tan B. सो वी कैन राइट दिस एज व्हाट, tan 30 प्लस tan 15 डिवाइड बाई 1 माइनस tan 30 इंटू tan 15. अब आप दोनों ही चीज़ें जानते हो. tan 30 प्लस tan 15 कितना आपको दिया हुआ है, ये -p है आपके पास, एंड 1 माइनस tan 30 इंटू tan 15 कितना है, q. एंड व्हाट अबाउट tan 45, एवरीबडी नोज दैट tan 45 इज हाउ मच, 1.
Now we'll do the cross multiplication. 1 minus q into 1, it will be 1 minus q is equal to minus p. अब आप माइनस पी को इस साइड लेके आ जाइए. इट विल बी 1 प्लस पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0. सॉरी, यहाँ पे 2 आ रहा है. यस, तो ऑब्वियसली 1 प्लस पी माइनस क्यू, तो आपको 2 चाहिए यहाँ पर. 2 प्लस क्यू माइनस पी, तो ऑब्वियसली आपको 1 दोनों साइड ऐड करना पड़ेगा. सो प्लस 1 एंड प्लस 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 प्लस पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 विल बी द आंसर. यस, मुझे लगा कि नहीं ऐसे 1 प्लस पी माइनस क्यू यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 कैसे दे दिया? तो यस, ऑब्वियसली हम यहाँ पे दोनों साइड 1 ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली हमको मिल जाएगा फिर 2 प्लस पी माइनस क्यू. सो गाइज, ऐसे कुछ कंडीशंस आपको दी जाएंगी. और देखा आपने यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई कर रहा है. तो इसी तरीके से हम ये जो कंडीशन, ये जो क्वेश्चन, ये जो कि बेसिकली है, हम इसको जो सीख रहे हैं ये किसी दूसरे चैप्टर में अप्लाई किए जाएंगे. जैसे ट्रिग्नोमेट्री को यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस के क्वेश्चंस यहाँ पे लिए जा रहे हैं, उसके फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई किए जा रहे हैं. उस तरीके से ये भी एक बेसिक चैप्टर है. इसका भी इस्तेमाल हम आगे कैलकुलस में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, किसी भी अलजेब्रा में हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसको हम. सो इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है. आइए चलते हैं अपने हम क्वेश्चन नंबर 6 में. क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इन द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स of the equation, difference between the roots. Quadratic equation, normally you take what roots? Alpha and beta. Their difference alpha minus beta is less than root 5. Less than, क्या ये आपने सही लिखा है? थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा सोचो. अल्फा माइनस बीटा लेस देन रूट 5. No, you have not written right this one, because root of 5 is always positive. ये हमने डिस्कस किया हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू वाले केस में, लेक्चर नंबर 6, इनइक्वालिटी इन एब्सोल्यूट वैल्यूज. रूट ऑफ 5 ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ऑब्वियसली उससे लेस ये भी पॉजिटिव ही रहेगा. अल्फा माइनस बीटा ये भी पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा. ठीक है, अल्फा माइनस बीटा. So guys, alpha minus beta is always what? Positive. Okay, then find the set of possible values of A. आपको A की possible values find out करने हैं यहाँ पर. मैं alpha minus beta को मैं क्या लिख सकता हूँ? Alpha plus beta the whole square. आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो. Yes, alpha minus beta the whole square. You know, alpha square minus 2 alpha beta plus beta square. Now if you write this one as यहाँ पे अगर आप यहाँ पे प्लस 2 अल्फ़ा बीटा आप लिखना चाहते हो तो आपको यहाँ पे -4 अल्फ़ा बीटा करना पड़ेगा, बिकॉज तब जाके 2 अल्फ़ा बीटा -4 अल्फ़ा बीटा यहाँ पे -2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा. बट इसकी ऐसा चेंज करने की वजह से क्या हो जा रहा है यहाँ पे, यू कैन राइट दिस वन एज वॉट? अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर एंड -4 अल्फ़ा बीटा. ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो. तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है? अल्फ़ा माइनस बीटा, सॉरी आप अगर इसको -4 अल्फ़ा बीटा लेस देन 5. सी दोनों अगर पॉजिटिव, तो यहाँ पे दोनों को स्क्वायर करने के बाद कैसी कंडीशन हुई है? दोनों ही पॉजिटिव हैं, स्क्वायर करने के बाद ऐसी कंडीशन बनी है. मैं लग रहा है कि एक से पहले मैंने लिख दिया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फ़ा माइनस बीटा द होल स्क्वायर less than 5. So I can write this alpha plus beta the whole square minus 4 alpha beta less than 5. दोनों ही पॉजिटिव थे तो उनके बीच स्क्वायर करने पे साइन चेंज नहीं होगा. अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? यस, -a/1 -a/1 the whole square minus 4 into what is alpha beta friends? What is alpha beta? Yes, 1/1 C/A. तो 1/1 it will be what? 1 less than 5. This is A square. -4 and -5 will be -9 is less than 0. And now you know this. This is actually A minus 3 into A plus 3 less than 0. और फिर से वही बात, वेवी कर्व मेथड मैंने आपको समझाया है. वेवी कर्व मेथड अप्लाई करके हम यहाँ पे इसके
पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ ए हम निकाल लेंगे फिर से। कैसे? हम यहाँ से पहले इसको हम लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे अपने पॉसिबल नंबर्स ए के। सो ए इज इक्वल टू 3 यहाँ से मिलता है, यहाँ से ए इज इक्वल टू -3 मिल रहा है। सो -3 + 3 regions resided here. This is always taken as positive. Now this 3 is coming from this bracket, power is odd, so odd के केस में साइन चेंज होता जाएगा। ये -3 is coming from this bracket, the power is odd, obviously ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बट लेस देन साइन है तो -1 is our required region. So our A belongs to what? A is greater than -3 and less than 3. Yes, यहाँ पे लेस देन का ही साइन है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, दैट्स वाई। सो आपका जो A है दैट बिलोंग्स टू -3 to 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7, कॉमन रूट। आपने जो लास्ट लेक्चर के कंडीशन ऑफ कॉमन रूट, सो इफ वन कॉमन रूट देन व्हाट कंडीशन, इफ बोथ ऑफ द कॉमन रूट्स देन व्हाट कंडीशन, बिटवीन द टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ यू रिमेंबर दैट, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ। इफ वी हैव टू quadratic equation a1x² plus b1x plus c1 is equal to 0 and another one is a2x² plus b2x plus c2 is equal to 0. If these two quadratic equations have one common root, then what is the condition? Condition लिखने के लिए मैंने यहाँ पे एक तरीका आपको बताया था। आप इस तरीके से जो कोएफिशिएंट्स है उनको आप स्प्रेड करके इस तरीके से एक बार पहले आप लिख लेंगे। देन द लॉन्गेस्ट प्रोडक्ट का डिफरेंस a1c2 माइनस a2c1 द होल स्क्वायर, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल टू राइट साइड में स्मॉलेस्ट जो प्रोडक्ट है a1b2 माइनस a2b1 इंटू b1c2 माइनस b2c1। दीज आर द टू। इस तरीके से ये कंडीशन होती है। इस तरीके से हम कंडीशन अपना, हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे अगर याद रखें कि यस, पहले लॉन्गेस्ट प्रोडक्ट का डिफरेंस द होल स्क्वायर इज इक्वल टू द फर्स्ट ब्रैकेट स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट का, सेकेंड ब्रैकेट स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच, और अगर दोनों कॉमन जो आपको पता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। सो फिलहाल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, these two quadratic equations may have a common, that means one common root is given to us here. So for one common root क्या कंडीशन, पहले हम यहाँ पे कोएफिशिएंट लिखेंगे अच्छे से। 3x कोएफिशिएंट 4m है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 2, 3 and -2. Now what is the condition here for the one common root? Longest product 3 into -2 -6 minus 2 into 2 4 the whole square is equal to smallest products कौन से हैं, 3 3 9 minus 2 4 is 8m and into the second bracket this one 4m into -2 minus 8m minus 3 2 is 6 -6 -4 -10 the whole square is what, 100. Cross multiplication, sorry, multiplication two brackets here, 9 into -8 m 72m, 9 into -6 -54, -8m into -8m minus plus 64m square, -8m into minus तो plus 8 6 48 into m. Now we'll write the quadratic equation perfectly here. This is our first term 64 m square. Now see -72m and plus 48m, you will subtract it and you will get what, minus 24m. This is minus the bigger number, this is plus the small number, subtract करने पे, and 100 will take to right hand side, वहाँ पे जाएगा वो भी नेगेटिव हो जाएगा, and it will become minus 154 is equal to 0. Now you can see it here. इसमें से जो दोनों में कॉमन है हम उससे इनको डिवाइड कर सकते हैं। आई थिंक सब तीनों में 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा m स्क्वायर माइनस 12m माइनस 2 7 ज़ा इज इक्वल टू 0। सो इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 32m² माइनस 12m माइनस 77, ये आपका फर्स्ट टर्म a है, ये b है, ये c है।
आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं। पहले यहाँ पे हम 32 क्या करेंगे, 77 से मल्टीप्लाई करेंगे। 77, 32, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 कैरी 15, 3 7 ज़ा 21 2 कैरी, 3 7 ज़ा 21 प्लस 2 23, 4 6 4 2, 2 4 6 4. Now we have to find the factor such that subtraction should give what, minus 12 here. So 2 4 6 4, this is how we find the factor here. We can see the even number at the last, so we can divide it by 2. हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं फ्रेंड्स. So 2 1 ज़ा 2 ज़ा 4 3 ज़ा and 2 ज़ा. Again at the end of the number it is 2, which is even number. The whole number is even, can be divided by 2. So 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12. Again by 2, 2 3 ज़ा 6, 1 यहाँ पे लेस देन 2 है तो फिर 2 0 ज़ा एंड वहाँ पे 16 हो जाएगा, 2 8 ज़ा. अगेन बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 5 ज़ा 10 एंड 2 4 ज़ा, 2 7 ज़ा 2 7 ज़ा 7 11 11 1. यू हैव टू फाइंड द फैक्टर सच दैट कि सब्ट्रैक्ट करने पे -12 आ जाए. तो 11 7 ज़ा ये तो नहीं ले सकते, 11 को किसी और के साथ लेना पड़ेगा. तो 11 2 ज़ा 22, 2 ज़ा 44, 7 2 ज़ा 14, 2 ज़ा 28, 2 ज़ा 56. यस 44 एंड 56 इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर -12 आ सकता है. तो दिस विल बी इन माइनस, दिस विल बी इन प्लस. इसके 2 टर्म बन जाते हैं -12 के. तो अब हम क्या करेंगे, इसके 2 टर्म बना देते हैं. So we can write 32m square minus 56m and plus 44m. This is how we have adjusted -12. You know that how to find the roots of the quadratic equation. Minus 77. Now you can see in these two 8 is common, 8m is common. So 4 ज़ा 32 minus 7 ज़ा, and here we take 11 common. So 4 ज़ा and 7 is equal to 0. So 4m minus 7, 4m minus 7, that will be taken common here. 8m plus 11 is equal to 0. Now from this bracket m you will get what? 7 divided by 4, and from this bracket you will get m is equal to minus 11 by 8. So m have 2 possible answers here. इसके 2 रूट्स हो सकते हैं, 2 वैल्यूज हो सकते हैं, 7/4 and minus 11/8. Now let's talk about our last question, question number 8. See, in question number 8, yes all of you, question number 8, x square plus 3x plus 5 is equal to 0 and this is the quadratic equation. Have both the common root, दोनों ही रूट्स कॉमन है. सो ऑब्वियस सी बात है, द रेशियो विल बी व्हाट, कोएफिशिएंट क्या रहेगा, इक्वल रहेगा. ए बी सी बिलोंग्स टू एन, इस बात पे ध्यान दीजिए, ए बी सी बिलोंग्स टू एन. देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी. ए प्लस बी प्लस सी, ओहो जोड़ना है पूरा यहाँ पे. ठीक, आइए देख लेते हैं ए बी सी. तो फिर हमको क्या करते हैं, हम 1/a की बजाय हम a/1 कर देते हैं. जैसे कि आप जानते हो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2. क्या फॉर्मूला है आपका, a1/a2 b1/b2 c1/c2. ये कुछ आपका फॉर्मूला है. तो 1/a 3/b एंड 5/c. लेकिन आपको ए बी सी का वैल्यू चाहिए, काम करते हो आप इसको उल्टा भी कर सकते हो. आई मीन यू कैन राइट दिस a/1 b/3 एंड c/5. नाउ सिंस आपको a प्लस बी प्लस सी चाहिए, एक काम करो आप इसको कुछ कंसीडर कर लो. सपोज दिस इज इक्वल टू k सपोज. सो व्हाट विल बी c, 5k. व्हाट विल बी b, 3 into k, 3k. What will be a, 1k. So a plus b plus c, 1k, 3 4k plus 5 9k. बट रिमेंबर गाइस, यहाँ पे आपका a b c बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. मतलब इन तीनों में से कोई भी 0 के इक्वल नहीं है. मतलब दे विल गेट एटलीस्ट वैल्यू 1. a b c का वैल्यू एटलीस्ट 1 होगा, कम से कम 1 होगा.
तो आप यहाँ पे 1 पुट कर, तो के का वैल्यू ले लीजिए ना 1, सीधी सी बात, मिनिमम 1 अगर लेते हो तो आप 1 सा, आप सपोज के को 1 ले लेते हैं यहाँ पर, यस, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वॉट 9 इन मिनिमम। यस, ए बी सी नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, सो ऑब्वियस सी बात है ए बी सी का वैल्यू, किसी का वैल्यू भी 0 या उससे कम तो हो ही नहीं सकता, तो कम से कम 1 होगा, कम से कम 1 होगा। तो इस केस में मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, आप के को 1 ले सकते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 9, 9 1 सा 9, आपको मिनिमम यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। जरूरी नहीं कि सबके सब 1 ही रहें, कोई 1 होगा, कोई 3 होगा, कोई 4 होगा, कुछ भी हो सकता है ऐसे ही। सो यस, सो फ्रेंड्स, ये हमने कंप्लीट किया अपना नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, nature of roots of quadratic equation, relation between the coefficients of their coefficients and roots, and the condition of 1 common root and 2 common root। और हमने कुछ 8 क्वेश्चंस वहाँ पर जो इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझा देते हैं। मुझे लगता है कि आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं तो फिर से एक बार वीडियो को अच्छी तरीके से रिवाइंड कीजिए और अच्छे से देख लीजिए और ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लोज करिए। और आप करिए अब क्या, आपकी जो बुक है अरिहंत की या फिर जी तिवानी की सिंगेज पब्लिकेशन की, दोनों की ही सीरीज़ आती है, आपने वो बुक मुझे लगता है कि आपने ख़रीदा हुआ है। आप कॉन्सेप्ट के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। IIT मैथ्स बाय JS सर, ये जो आपका चैनल है, इस चैनल पे मैं लगभग सभी कॉन्सेप्ट के लिए, अगर आप MHT CET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, JEE मेंस या एडवांस के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप पूरे लेवल के लिए आप यहाँ पे प्रिपेयर हो सकते हैं बाय अटेंडिंग जस्ट माय लेक्चर्स हियर सीरियल वाइज। मैं हर एक सभी चैप्टर्स का एक मैं अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया हूँ। उस प्लेलिस्ट में नंबर ऑफ़ लेक्चर मैंने डिस्कस किए, मैं ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्सेप्ट्स, मैंने एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा हुआ है। आप सभी कॉन्सेप्ट को बेसिकली वहाँ से समझिए, आपको किसी और बुक में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन योर टेक्स्ट बुक। आप कोई भी एक टेक्स्ट बुक ले लीजिए, जी तिवानी की या फिर अरिहंत की, मैं ये ज़्यादा आपको मैं प्रेफर करूँगा। और ज़्यादा बुकों के लिए परेशान मत होइए, आपको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिए, और अगर आपको लगता है कि इसमें कंटेंट्स कुछ वैल्यूएबल है, मैं कुछ ये आपके किसी और फ्रेंड के काम आ सकता है, तो उन्हें भी शेयर करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए, क्योंकि आपको पहले ही पता चल जाएगा, मेरे जिन जो नए लेक्चर्स रहेंगे वो आपको पहले ही पता चल जाएंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स। वहाँ पे हम नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को और भी कॉम्प्लेक्स करेंगे, इसको हम थोड़ा और भी बढ़ाएंगे। हम इसको ज़रा, हम कहने का मतलब ये है कि हमारा मेन टॉपिक है वहाँ पर रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और इक्वेशन जो आपका है वो जस्ट क्वाड्रेटिक तो हो गया आपका ये, अब वो क्यूबिक होगा या उससे ज़्यादा पावर का होगा। सो इट इज़ गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग वन। सो आई विल वेट यू गाइस देयर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।